Good morning everyone and welcome to the class. We are doing the chapter Ruling the Countryside, and under this chapter we have done the different system of revenue which was devised by the British in order to gain more and more financial resources from the countryside. And now we are discussing the topic that is crops for Europe, because what the British company, the officials of the company, what they felt that the countrysides are not only important for generating revenue, but they can use these countryside for producing those crops which was required by them. They can force the farmers of the countryside to grow only those crops which were in demand in Europe. As we have seen in this regard, two main crops were there, like indigo and opium, which were forcibly produced, which was the farmers were made to produce these crops forcibly. Other than this, there were other crops also, like in different regions different crops were there. In Assam it was tea, in Bengal it was jute, in United Provinces it was that sugar cane, in Punjab it was wheat. So in the similar way, they now they wanted that the farmers should grow only those crops which the Europeans needed. And under this chapter we are going to focus only on one of such crops, and that is indigo. क्रॉप्स फॉर यूरोप, ठीक है. तो ये पहली चीज़ है, यही चीज़ है इंडिगो, जिसके बारे में हम लोग कल हैव स्टार्टेड आवर डिस्कशन एंड वी हैव सीन दैट indigo was in great demand in Europe. For what purpose indigo was required? Indigo was used for dyeing the cloth in rich blue color. As we have seen, the kalamkari which was done in India, in Andhra Pradesh, and the Morris cotton print which was the product of London, both these have something in common. What was this common thing? The common thing was rich blue color, which was given to these fabrics by the use of indigo only. So indigo was very much in demand in European countries because of its color. And one more thing is there which we have discussed, that indigo is a product of a crop of that region which is called tropical, है ना. ट्रॉपिकल रीजन जो हमने ग्लोब में देखा था कल, जो ट्रॉपिकल रीजन होता है उसका ये प्रोडक्ट है. इसी वजह से this indigo cannot be produced in European countries, because European countries are in temperate zone. So they were completely dependent on India for this indigo. And what we find that from 13th century the Indian indigo was exported to the countries of Europe, like Italy and other countries also. So the problem was that the indigo was coming from India, which was at a very distant place, है ना. फ्रॉम यूरोप अगर हम डिस्टेंस देखें तो इंडिया की बहुत ज़्यादा थी. तो जो इंडिगो इंडिया से यूरोप जाता था स्मॉल अमाउंट में जाता था, एंड देयर वाज हाई प्राइस बहुत हाई हो जाता था. तो the manufacturer of cotton clothes found it expensive to purchase indigo for the purpose of dyeing the clothes, because it increased their cost of production.
So there was no way to escape this increase in cost of production if they are using indigo. So what they did, they started producing another plant called woad, as I told you in the previous class. They started to plant this woad. It was this woad plant was used to make colors like violet and blue. Okay, and this woad was a plant of temperate zone, so it was easily available in Europe, as we find there was problem in the availability of indigo in Europe. So now they were producing indigo, and it was easy for them because इसने उनके cost of production को reduce कर दिया. एंड ये इसका प्रोडक्शन नॉर्दर्न इटली में होता था, सदर्न फ्रांस में, एंड जर्मनी में भी, ब्रिटेन में भी, इन सब जगहों पे वोड जो है वो प्रोड्यूस किए जाते थे. बट वोड का जो कलर होता था और इंडिगो का जो कलर होता था उसमें बहुत डिफरेंस था. जो डायर्स होते थे दे प्रेफर्ड इंडिगो एज अ डाई. इंडिगो से जो कलर रिच ब्लू कलर मिलता था वो वोड से नहीं मिलता था. वोड का जो ब्लू कलर होता था वो डल होता था, पेल होता था, और इंडिगो का जो ब्लू कलर होता था वो बहुत ही रिच होता था, है ना. तो इस कारण क्या हुआ कि जो क्लॉथ मैन्युफैक्चरर्स थे उन्होंने अपनी गवर्नमेंट को, अपनी वोड प्रोड्यूसर्स, नॉट क्लॉथ मैन्युफैक्चरर्स, वोड प्रोड्यूसर्स जो थे, उन्होंने गवर्नमेंट पे ये प्रेशराइज़ किया कि वो इंडिगो के इंपोर्ट पे बैन लगा दे. अगर इंडिगो आएगी ही नहीं तो जो भी डायर्स हैं, क्लॉथ मैन्युफैक्चरर्स हैं, दे विल नॉट हैव एनी ऑप्शन. दे विल हैव टू यूज़ दिस वोड, एंड देन द वोड प्रोड्यूसर्स विल बी इन प्रॉफिट. So for that purpose the wood producers put pressure on the government to ban the import of indigo, and that ban was done by the government of European countries. Indigo was banned, but what we find that as I told you, the colors were different. The color of indigo was very rich, and the color of wood was dull and pale. So lastly we find that the dye, the people who dyed, the cloth dyers, they always preferred this indigo. And now they, in the 17th century, the European cloth producers, now they started putting pressure on the government to relax the ban which was put on the import of indigo because of the pressure from the wood producers. जो वोड प्रोड्यूस कर रहे थे उन्होंने प्रेशर डाल के बैन करवा दिया. लेकिन जो क्लॉथ मैन्युफैक्चरर्स थे, जो डायर्स थे, उनको ये समझ में आ रहा था कि वोड का जो कलर है वो अच्छा नहीं है, जो इंडिगो का कलर है वो ज़्यादा रिच है. तो उन्होंने फिर से गवर्नमेंट पे, जो क्लॉथ मैन्युफैक्चरर्स थे, उन्होंने फिर से गवर्नमेंट पे प्रेशर डाला. किस लिए? बैन को हटाने के लिए, कि जो इंडिगो पे बैन लगा है उसको ख़त्म कर दिया जाए. ठीक है. और इस तरह से हम देखते हैं कि जो इंडिगो का डिमांड था वो बना रहा यूरोप के कंट्रीज़ में. उसके लिए एफ़र्ट्स हुए, लेकिन डिमांड जो था वो बना रहा. So what we find that there was a very big difference between the color of indigo and wood. So what happened that now the Europeans, the cloth manufacturers, they were very much they wanted indigo. लेकिन इंडिया से जो इंडिगो आ रहा था उस पर वो डिपेंडेंट तो थे, बट दैट वाज इंक्रीजिंग देयर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. तो अब क्या हुआ, जो उनके कॉलोनीज़ थे, जो यूरोपियन पावर्स के कॉलोनीज़ थे, जो कि जहाँ पर कि इंडिगो की खेती हो सकती थी, वहाँ पर उन्होंने अब इंडिगो के कल्टीवेशन को स्टार्ट किया. जैसे हम देखेंगे फ्रांस जो थे, फ्रांस की जो कॉलोनी थी सेंट डोमिनिक,
वहाँ पर उन्होंने इंडिगो की खेती स्टार्ट कर दी। ठीक है, फ्रांस सेंट डोमिनिक। सो ये जो सेंट डोमिनिक है दैट वाज इन कैरिबियन आइलैंड। ओके, तो इस तरह से इन्होंने अपना वो निकाला जिसको हम कहें कि रास्ता निकाला, तरीका निकाला। इसी तरह से जो पोर्टुगीज़ थे, द पोर्टुगीज़ दे स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग दिस इंडिगो इन ब्राज़ील, है ना। तो पोर्टुगल जो कंट्री है, फ्रांस ने डोमिनिक में, पोर्टुगल ने ब्राज़ील में, दे स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग दिस इंडिगो। इसी तरह से जो इंग्लिश थे, ब्रिटिश जो थे, वो जमाइका में स्टार्ट कर दिए। इंग्लैंड ने जमाइका में इसकी खेती जो है वो शुरू कर दी, इंडिगो की कल्टीवेशन। अभी आगे और भी है, जैसे स्पेन जो थे, स्पेनिश पीपल जो थे, स्पेन के लोग जो थे, स्पेन के जो क्लॉथ मैन्युफैक्चरर्स थे, दे स्टार्टेड डूइंग इट इन वेनेजुएला। तो इससे क्या हुआ, दीज ऑल आर द कॉलोनीज ऑफ दीज यूरोपियन पावर, ब्रिटेन, फ्रांस, Spain, Portugal, these were the colonial powers of that time. These countries were having their colonies in different parts of the world, especially the countries of Asia, then Latin America, then Africa. They were the colonies of these countries. तो इन colonies में जो tropical regions में थे, जहाँ पर suitable था इंडिगो का कल्टीवेशन, वहाँ पर उन्होंने इंडिगो का कल्टीवेशन कराना स्टार्ट कर दिया। तो इस तरह से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का इन्होंने कोशिश किया। लेकिन फिर से कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जिसके कारण वी फाइंड दैट देयर वाज इंक्रीज इन द डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो। व्हाट वाज द रीज़न? The reason was that we can say in the 18th century in Britain, the industrial revolution took place, and the rapid industrialization was happening in Britain, and the main we can say the main industry of the base industry of this industrial revolution was iron and steel, and the second was कॉटन इंडस्ट्री। सो कॉटन इंडस्ट्री एक्सपैंडेड एक्सटेंसिवली, बहुत ज़्यादा एक्सपैंड करता है कॉटन इंडस्ट्री। एंड जब ये बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, बिकॉज ऑफ सो मैनी एडवांसमेंट इन मशीनरी एंड टेक्नोलॉजी, देन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन टुक प्लेस। जब प्रोडक्शन ऑफ क्लोथ एक्सपैंडेड, सो देयर वॉज very great need of this indigo। इंडिगो की नीड में भी बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई, और नाउ इट वाज नॉट पॉसिबल कि वो जो एग्जिस्टिंग सप्लाई उनको हो रहा था कैरिबियन आइलैंड से, वो सफिशिएंट नहीं था। नाउ दे नीडेड मोर इंडिगो बिकॉज क्लॉथ प्रोडक्शन बढ़ गया। तो ये जो ज़्यादा इंडिगो चाहिए था, इसके लिए फिर से उनका डिपेंडेंस इंडिया पे हुआ। तो व्हाट वाज द रीज़न फॉर इंक्रीज्ड डिमांड फॉर Indian indigo in the late 18th century? The first reason is, I'm just writing the points. Okay, reasons for increase in the demand of indigo in Europe
in late 18th century. The first is Industrial Revolution in Britain. ओके, दिस यू अंडरस्टूड है ना. इसकी जो ये है आप समझ चुके हैं. इसको आई थोड़ा सा बड़ा लिख दे रही हूँ. यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड इट. Industrial Revolution in Britain. And the second is there was in America there was unrest. Why? Because in America there was war of independence, है ना. तो American War of Independence was going on in the we can say in the late 18th century. In America got independence on 4th July 1776. So before that America was involved in its freedom struggle, its war against the British, because America was the colony of the British, है ना. तो अमेरिका में भी अनरेस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर भी जो इनका प्रोडक्शन हो रहा था वो कम हो जाता है. ठीक है. So the second reason is American War of Independence. And because of these reasons, what we find that between 1783 and 1789 the production of indigo fell by half. ठीक है. प्रोडक्शन का इंडिगो का प्रोडक्शन जो है वो आधा रह गया 1783 से 1789 के बीच में. एंड नाउ द क्लोथ डायर्स इन ब्रिटेन दे नाउ डेस्परेटली नीडेड अ न्यू सोर्स ऑफ इंडिगो सप्लाई, एंड दैट दे फाउंड इन इंडिया. बिकॉज उस समय, जिस समय की हम बात कर रहे हैं, लेट 18th सेंचुरी, इंडिया के सिचुएशन जो था वो फेवरेबल था, जिसमें कि कंपनी अपने हिसाब से चीज़ों को कर सकती थी. और वही कुछ होता है जो कि हम अभी आगे देखेंगे, किस तरह से हमारे जो कल्टिवेटर्स थे दे वर फोर्स्ड टू ग्रो इंडिगो. सो नाउ Britain turns to India. Okay, so as we have seen that there was rising demand for indigo and in Europe. So why now the British East India Company, it started looking for ways to expand the area under indigo cultivation. How to expand the area under indigo cultivation in India so that more and more indigo can be produced in India and then it can be exported to Britain, and the demand for Britain, the demand for indigo in Britain can be met with. So now we see that what were the different ways adopted by the company to increase productivity of increase the cultivation of indigo in India. So we see that from the last decade of 18th century, indigo cultivation in Bengal expanded rapidly, and Bengal indigo came to dominate the world market because there was requirement of indigo in Europe, and the cultivation was increased in the last decade of 18th century, and now
we see that everywhere, in the whole world, this Bengal indigo was dominating. And if we have one data also, what we find that in the year 1788, if we see the year 1788, what we find that only about 30% of the indigo imported into Britain was from India. जो भी ब्रिटेन में इंडिगो इम्पोर्ट होता था उसका 30% जो था वो इंडिया से जाता था. ठीक है, 30% ऑफ टोटल इम्पोर्ट 30% of total import of indigo in Britain was from India. ठीक है, इंडिया से जो एक्सपोर्ट हो रहा है इंडिगो का ब्रिटेन में, वो वहाँ के टोटल इंडिगो एक्सपोर्ट का 30% था. जो भी इंपोर्ट का, जो भी ब्रिटेन इंपोर्ट कर रहा है कई सारी जगह से, ब्रिटेन जो है वो कई सारी जगह से इंपोर्ट कर रहा है इंडिगो. ठीक है, सपोज इस तरह से बिल्कुल क्लियर कर लेना चाहिए चीज़ों को. कई सारी जगह से इंपोर्ट कर रहा है इंडिगो को. तो इसमें से पूरे इंपोर्ट में से जो सिर्फ और सिर्फ 30% ही इंडिया से आ रहा था. बाय द ईयर 1788 ओनली 30% वॉज गोइंग फ्रॉम इंडिया. बाकी का जो 70% था वो अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड से उनका फुलफिल हो रहा था. बट व्हाट वी फाइंड दैट इन 1810, अगर हम 1810 को देखते हैं तो what we find कि that in 1810 the production had gone up to, the proportion gone up to 95%. जो ये 30% था ये 95% हो गया. ठीक है, वैसे सिर्फ बहुत ज़्यादा समय का फ़र्क नहीं है. कैन सी इट्स ओनली द डिफरेंस ऑफ 12 प्लस 10 22 ईयर्स. सो इन दिस 22 ईयर्स जो इंडिगो का इंपोर्ट इंडिया से 30% कंस्टिट्यूट करता था टोटल इंपोर्ट का ब्रिटेन में, वो अब 95% हो गया. यानी कि ब्रिटेन में जो भी इंडिगो पहुंच रहा है वो 95% उसका इंडिया से जा रहा है. ओनली 5% वॉज फ्रॉम अदर कंट्रीज. तो इस तरह से इंडिया से ज़्यादा इंडिगो का एक्सपोर्ट हो रहा था ब्रिटेन को. ओके, एंड इंडिगो का जो ट्रेड था वो काफ़ी ग्रो किया. और इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि जो कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिसर्स थे, दे ऑल्सो स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन इंडिगो प्रोडक्शन. इंडिगो के प्रोडक्शन में उन्होंने भी इन्वेस्टमेंट करना, मतलब कंपनी तो कर ही रही थी. ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहाँ पर टू वे चल रहा है, दो फोल्ड हो रहा है. एक तो कंपनी जो है वो फोर्स कर रही है कि आपको कल्टीवेशन करना, कैसे कर रही है वो भी हम लोग देखेंगे. एक कंपनी की तरफ से हो रहा है, और दूसरा कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे उनके लिए ये एक साइड बिजनेस था, टाइप ऑफ साइड बिजनेस है ना, कि जहाँ से वो और भी ज़्यादा पैसे उनको जनरेट कर सकते हैं. तो दे ऑल्सो स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन इंडिगो प्रोडक्शन. और कुछ ही सालों में हम देखते हैं कि जो कंपनी के ऑफिसर्स थे उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी. क्यों छोड़ दी? क्योंकि इंडिगो का बिजनेस उनका बहुत अच्छा चल पड़ा था. इंडिगो से उनको बहुत ज़्यादा अर्निंग हो रहा था. सो दे लेफ्ट देयर जॉब सो दैट दे कैन फोकस ऑन दिस इंडिगो का जो बिज़नेस है, इस पर वो पूरी तरह से फोकस कर सके. इसके लिए उन्होंने जॉब छोड़ दिया, है ना. और इस तरह से बहुत सारी जो स्कॉटिश पीपल थे, जो कि स्कॉटलैंड जो कि ब्रिटेन का ही एक हिस्सा है, बहुत सारे ऐसे स्कॉटिश और इंग्लिश पीपल जो थे वो इंडिया आए और प्लांटर्स बन गए. प्लांटर्स क्या चीज़ के? इंडिगो के, क्योंकि उनके पास पैसा था. पैसे से और यहाँ पर सारे के सारे आपको रिसोर्सेज अवेलेबल थे. सो दे केम हियर एंड दे स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन इंडिगो प्लांटेशन. और बहुत कुछ वो उनको फाइनेंशियल बेनिफिट हुआ, है ना. और कुछ ऐसे भी थे जिनके पास पैसा नहीं था, वो हैड नो मनी टू प्रोड्यूस इंडिगो. सो वो क्या किए, उन्होंने कंपनी से लोन लिया, बैंक से लोन लिया, और तब वो इन्वेस्ट करना शुरू किया. तो इस तरह से ये बहुत ही ज़्यादा हम कहेंगे इट वॉज हाईली बेनिफिशियल फॉर द कंपनी, फॉर ब्रिटिश, फॉर द होल ब्रिटिश कंट्री, एंड फॉर द पीपल ऑफ, फॉर द एम्प्लॉयज़ ऑफ द कंपनी एज वेल. उन सब के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद था. लेकिन इन सब के अंदर को अगर हम देखें, माइन्यूटली अगर हम देखें क्या कुछ चल रहा था, तो हमें समझ में आएगा कि ये हमारे जो
फार्मर्स थे, जो इंडिगो ग्रोअर्स थे, उनके लिए उनके कॉस्ट पे सब कुछ हो रहा था। हाईली एक्सट्रीमली ऑपरेसिव सिस्टम ये था, जिसको अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। कि सबसे पहले हम ये समझेंगे कि कैसे इंडिगो का कल्टीवेशन करने का क्या तरीका रखा गया था। हाउ वाज इंडिगो कल्टीवेटेड। How was indigo cultivated? So we see that there were two main system of indigo cultivation. दो तरीके थे इंडिगो के कल्टीवेशन का. The one first was called niche and the second was called rayati. The first is niche and the second is rayati. Okay. ये क्या था इसको हम लोग समझेंगे. निज कल्टीवेशन क्या था, इसमें क्या होता था कि जो प्लांटर होते थे वो इंडिगो को प्रोड्यूस करते थे उस लैंड में जो कि वो डायरेक्टली कंट्रोल करते थे. ओके, द प्लांटर्स प्रोड्यूस्ड इंडिगो इन लैंड्स दैट ही डायरेक्टली कंट्रोल. निज का मतलब क्या होता है? इट्स अ हिंदी वर्ड. निज का मतलब होता है, अगर इस हिंदी वर्ड को हम देखें तो इसका मतलब होता है अपना. तो यही अपना है. जो प्लांटर्स हैं वो क्या कर रहे हैं? दे आर प्रोड्यूसिंग इंडिगो अपना लैंड या तो रेंट पे लेके या परचेज करके, तब उस लैंड पे वो इंडिगो का कल्टीवेशन कर रहे हैं. उनका अपना कल्टीवेशन कर रहे हैं, डायरेक्टली वो कंट्रोल कर रहे हैं. एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड directly by the planters. So जो planters हैं वो या तो लैंड को परचेज कर लेते थे या रेंट पे ले लेते थे ज़मींदार से, और उसके बाद वो जो लेबर को भी हायर कर लिया और फिर वो अपना प्रोडक्शन करते थे. ठीक है. अब ये जो निज, पहले हम लोग निज को ही समझेंगे, रैयती को बाद में समझेंगे. ये निज कल्टीवेशन में कुछ प्रॉब्लम्स आई. क्या प्रॉब्लम आई? वो प्रॉब्लम ये थी कि प्लांटर्स के लिए प्रॉब्लम ये हुआ कि उनको अपने एरिया को एक्सपैंड नहीं कर सकते थे. इंडिगो जो है उसके कल्टीवेशन के लिए बहुत ही फर्टाइल लैंड चाहिए, है ना. और जो उनको लैंड अवेलेबल नहीं हो पा रहा था. निज कल्टीवेशन के अंदर जो ज़मींदार से वो सोचे कि लैंड परचेज कर लेंगे या रेंट पे ले लेंगे, तो लैंड उनको सही ढंग से अवेलेबल नहीं हो पा रहा था. बिकॉज ये पहले से बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है. जो बंगाल की हम बात कर रहे हैं जिस प्रोविंस की, दैट इज़ डेंसली पॉपुलेटेड एरिया. तो लैंड पे प्रेशर पहले से ही बहुत ज़्यादा था. अब उसमें इनको लैंड चाहिए इंडिगो के कल्टीवेशन के लिए, तो लैंड की अवेलेबिलिटी नहीं हो पा रही थी. केवल स्मॉल प्लॉट्स मिल रहे थे, और वो भी स्कैटर्ड मतलब बिखरे हुए, जहाँ तहाँ एक जगह पे बहुत बड़ा सा प्लॉट मिल जाए इस तरह का नहीं हो पा रहा था. जो प्लॉट्स मिल रहे थे वो स्कैटर्ड थे, छोटे छोटे थे, और इस कारण प्लांटर्स को प्रॉब्लम हो रही थी. वो चाह रहे थे कि एक ऐसा बड़ा सा प्लॉट मिल जाए जहाँ पर कि वो एकदम कॉम्पैक्ट ब्लॉक हो, जिसके अंदर वो इंडिगो का कल्टीवेशन करें, है ना. और वहीं पर वो चाहे तो अपने प्रोसेसिंग का भी काम वहीं पर कर ले. तो इस तरह का लैंड, एक बड़ा पीस ऑफ लैंड उनको नहीं मिल पा रहा था. इसके लिए उन्होंने काफ़ी अटेम्प्ट किया, कोशिश किया कि इस तरह के लैंड मिल जाए. खास करके वो चाहते थे कि दोनों काम एक साथ हो. जहाँ पे कल्टीवेशन हो रहा है वहीं पर प्रोसेसिंग, जो फैक्ट्री है या फिर कि उस लैंड के इंडिगो के क्रॉप से उसकी डाई बनाई जाएगी, कलर बनाई जाने वाली जो फैक्ट्री है, वो भी वहीं पर हो. तो इससे क्या होगा कि उनको आराम हो जाएगा, है ना. तो इसलिए ये उनके लिए बहुत प्रॉब्लम आ रही थी कि ऐसा लैंड उनको नहीं मिल पा रहा था. और कई बार ऐसा भी करते थे
कि जैसे कोई एरिया जहाँ पर कि उनकी फैक्ट्री इस्टेब्लिश है, ठीक है, इंडिगो की प्रोसेसिंग की फैक्ट्री जहाँ पर है, वहाँ पर जो लैंड है उस लैंड पर वो चाहते थे कि इसी लैंड पे हम कल्टीवेशन करें। तो वो लैंड जिस किसान को, जिस पेजेंट को बिलोंग करता था, उसको वहाँ से भगाने लगते थे बाय यूजिंग द पावर, है ना, और फिर चाहते थे कि हम यहाँ पर हम खेती करें। तो इस कारण से क्या होता था, कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाता था, टेंशन हो जाता था जो लोकल पेजेंट्स थे और जो इस तरह के प्लांटर्स थे। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आई थी। वी विल डिस्कस ऑल दीज प्रॉब्लम्स in the next class.